Good evening, everyone. Once again, today's session will talk about limits and derivatives. Please write down the topics in your notebook. Limits and derivatives. Also mention that limits and derivatives is actually a part of a major topic which we have to study is calculus. So from today we are actually starting. Yes, Rahul, good evening. Today we are actually starting calculus. Keeping in mind the present scenario that you guys have your exams on 5th, and as I have known, limits is the only syllabus. Derivatives part we will take up little later, right? So we'll do limits, and tomorrow or the next day we'll do straight lines and all. I have planned that we will try to finish limits in one class. So for that I need to go a little fast. However, it doesn't mean that I will run away, run through, topics so short that you won't understand. It's not like that. So when I say fast, I want you guys to be fast in solving. My speed remains as it is. Okay. Is it good to go? Right? Yes, sir. All right. Basically, when I talk about limits, let us understand it like this. Okay. Suppose this is my x-axis, this is my y-axis. I define a function fx is equals to x square. This is a parabolic function, quadratic function. Let me draw the graph. The graph of a parabolic function looks like this, right? So you will see that this function is actually continuous. I mean, starting from left hand side till right hand side, this function or this graph is a continuous graph. So basically, why we are studying limits is because we want to understand continuous function. Then we also want to understand derivatives, differentiation, and stuffs like that. So limits is actually the ABCD of calculus. So when I talk about limits, how do we actually understand mathematically? See guys, if I say that limit, it is written as LT, right? Limit of the function fx at x tends to 0. How do I read this? Limit of fx at x tends to 0 is equals to what? So it means that this function has the domain. x जो है इसका डोमेन है. x इनपुट होता है तो आउटपुट मेरा आता है fx. तो limit actually talks about what will be the value of the function if the input is tending towards a particular point. Like here's the input is moving towards 0. So if I'm smart enough, I would understand that input मतलब जो x है, अगर 0 की तरफ बढ़ना है तो या तो मैं लेफ्ट की तरफ से बढ़ सकता हूं या तो मैं राइट की तरफ से आ सकता हूं 0 के पास. तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ से आता हूं तो मैं इसको कहता हूं लेफ्ट लिमिट. सो इसको हम ऐसे लिखते हैं LT मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. माइनस का मतलब x का वैल्यू 0 की तरफ आएगा माइनस से होकर के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, ऑफ fx. इसका वैल्यू क्या होगा? अगर मान लो ये राइट हैंड साइड से आता है तो हम बोलते हैं लिमिट दैट x टेंड्स टू 0 प्लस. दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. लिख लो, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट, sorry, I should write like this, left hand limit. This is called right hand limit, right? So when x tends to 0 plus, fx का value क्या होगा? So we can very well understand from the graph that अगर x 0 की तरफ अगर लेफ्ट से भी आएगा तो ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा. तो हम लिखते हैं कि लिमिट जब x टेंड्स टू 0 माइनस होता है तब इसका वैल्यू 0 होता है from the graph. Don't worry how am I writing mathematically, but from the graph its value is 0. अगर राइट की तरफ से आता है x 0 की तरफ तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो, अगर x 0 की तरफ मूव करेगा तो इसका जो y का वैल्यू होगा वो भी 0 की तरफ मूव करेगा. So I say that limit of this function fx at x tends to 0 plus
इज ऑल्सो 0। तो यहां पे अगर आप देखो कि लिमिट इन दोनों का बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहते हैं देयरफॉर लिमिट, इसको लिखो, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0। सर क्या कहना चाहते हो, पहले नोट लिखो, नोट में लिखो, इफ लिमिट, अगर आप लेफ्ट की तरफ से आते हो किसी फंक्शन में, अगर उसका वैल्यू लिमिट एट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर a लिख दूंगा, नॉट नेसेसरीली 0, इट कुड बी एनीथिंग a। तो अगर नेगेटिव की तरफ से उस वैल्यू उस पर आओगे या तो पॉजिटिव की तरफ से आओगे उस फंक्शन का, अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, देन लिमिट एट x is equals to a exist, else does not exist। what does not exist, else limit does not exist, ऐसे लिखो, write copy it and write if you have understood। वो क्या आ रहा है? हाँ जी, क्या आ रहा है करना ही फिर लिमिट, मतलब I didn't understand, tell me again। का मोटिव क्या है, लिमिट निकालना है फिर लिमिट किसका निकालना? अच्छा मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग इस, अभी आगे देखो समझ में आएगा राहुल। बेसिकली जब आप बचपन में ABCD पढ़ते थे तो आप नहीं पूछते थे ना सर कि अपने मम्मी से नहीं पूछते थे सर मम्मी ABCD क्यों पढ़ रहे हैं, उस समय वो आपको ABCD पहले याद करवाती थी, राइट। अगले बार जब आप नेक्स्ट क्लास में जाते थे तो फिर आप CAT कैट लिखना शुरू करते थे, तो आपको समझ में आता था अच्छा अच्छा ये ABCD हम इसलिए पढ़े बिकॉज आई एम एबल टू राइट कैट, राइट। दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग एज ऑफ नाउ, लिमिट्स। तो इसको हम लोग यूज करेंगे आगे डिफरेंशिएशन में, फिर कैलकुलस के अदर कंसेप्ट्स में। एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि किसी भी फंक्शन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट डिफाइंड तब होता है जब लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम निकाले उस पर पर्टिकुलर वैल्यू, या तो राइट हैंड साइड से निकाले उस पर पर्टिकुलर वैल्यू, अगर दोनों बराबर होता है तो हम कहते हैं उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअली x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड, मतलब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू से अगर कोई सैंपल वैल्यू लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से कोई सैंपल वैल्यू लेंगे, अगर दोनों ही एग्जिस्ट करता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू वही आएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लो, आपको समझ में आएगा। मान लो मैं बोलता हूं fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ पहले बनाओ, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का देखो ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0, fx का लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट सोचोगे कि x जो है इनपुट वैल्यू, वो अगर 0 की तरफ इधर से आएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब 1 आएगा। देखो ये 0 है, अगर इस तरफ से आएगा तो आप लिखोगे लिमिट एट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, अगर इधर आएगा तो ये 0 यहाँ पर पुट हो जाएगा, 0 प्लस 1 विल बी 1। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ से आएगा तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो इधर से आएगा तब भी तो 0 पर इसका वैल्यू 1 ही है, मतलब कि थोड़ा सा इधर वाला वैल्यू 0 से थोड़ा सा पहले x टेंड्स टू बढ़ता है 0 की तरफ नेगेटिव साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाला वैल्यू, और अगर इधर से होगा तो ये वाला वैल्यू। तो देखो जब x बढ़ेगा तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 1 आएगा, इधर से भी अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 1 आएगा, तो यहां पर भी देखो 0 प्लस 1 आएगा 1। तो हम कहेंगे कि द ग्राफ इज एक्चुअली कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर, क्योंकि हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ राहुल। सपोज एक और एग्जांपल लो, मान लो मैं बोलता हूं fx इज इक्वल्स टू 2 at x less than equal to 0, less than 0 is equals to -2 at x greater than 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लिमिट में निकालूं कि 0 से प्लस
तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? इसका 0 से 0 की तरफ प्लस की तरफ से, मतलब कि इधर से आएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, अगर 0 की तरफ आएंगे तो ये तो वैल्यू x 0 से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। उसी की जगह अगर मैं निकालूंगा x 0 से मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी आप लेफ्ट की तरफ से आओगे तो 0 माइनस क्या होगा, x लेस देन 0, तब ना इधर का जो वैल्यू माइनस मतलब ये वाला लेगा, तो अब इसका वैल्यू देखो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 0 पे प्लस पे -2 आ रहा है, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा ये देखो ऐसे, 0 से कम तो इसका वैल्यू +2, तो +2 का वैल्यू क्या होगा इधर से, मतलब उल्टा, सॉरी लेट मी चेंज द कलर। देखिए लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या, इसका वैल्यू 2 होगा। और x इज इक्वल्स टू, एक और लिख लो, x इज इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू 0 है, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू 0, और x जब 0 से कम है तो इसका वैल्यू 2, और x 0 से जब ज्यादा है तो इसका वैल्यू -2। तो आप देख सकते हो ये जो येलो कलर, अगर मैं हाइलाइटर यूज करूं, ये जो येलो कलर है, ये ग्राफ x इज इक्वल्स टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो एवरी टाइम आई कैन नॉट ड्रॉ द ग्राफ, therefore what I do, I go by limit। तो लिमिट ये कहता है कि इधर से आओगे तो वैल्यू कुछ आता है और इधर से आओगे तो वैल्यू कुछ आता है, therefore फिर क्या लिखोगे, therefore at x is equals to 0 limit of fx does not exist। सर क्यों नहीं एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। राहुल समझ में आया क्यों हम लोग निकाल रहे हैं, कि अभी हमें हमेशा ग्राफ बनाना नहीं जरूरी पड़ेगा, हम लोग मैथमेटिकली निकाल लेंगे। ऑल ओके, got it? Everybody right understood? If this much is clear, this is actually the fundamentals of limits. We will actually now go into the question kind। ठीक है, चल अब देखो पहला टाइप का क्वेश्चन कैसा रहता है, बहुत सिंपल। Let's take a question, say fx is equals to x into x plus 1, and they will say कि भाई इसका लिमिट निकालो at x tends to 3। तो सबसे पहला टाइप आप लिख सकते हो टाइप 1, दिस इज द इजीएस्ट ऑफ इट्स काइंड। इधर साइड में आप नोट में लिख सकते हो कुछ कुछ थ्योरम्स एंड ऑल, बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम दैट आई विल डिस्कस थ्योरम एंड ऑल एवरीथिंग। आप ध्यान से समझो पॉइंट नंबर 1 कि अगर लिमिट किसी फंक्शन का आप निकालते हो fx इंटू जी एक्स प्रोडक्ट में है, तो लिमिट जो होता है दोनों में बढ़ जाता है। fx का अलग निकालना लिमिट मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर भी होगा, और x टेंड्स टू a, gx का अलग लिमिट निकाल। तो आप देखो ये प्रोडक्ट में है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट एट x टेंड्स टू 3 x का मल्टीप्लाइड बाय लिमिट एट x टेंड्स टू 3 x प्लस 1 का। यू कैन सी 3 पर ये डिफाइंड है, मतलब कि 1/x रहता और x 0 को टेंड करता तो 1/0 डिफाइंड नहीं होता। तो अभी पहला टाइप में हम लोग जो ले रहे हैं, जब लिमिट डिफाइंड होगा x इज इक्वल्स टू 3 पर, तो आप 3 यहाँ पुट कर दो, x टेंड्स टू 3 तो यहाँ पर पुट कर दो 3, और x टेंड्स टू 3 तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 4 is 12, this is the answer। Right, understood? I'll give you a question now। इसको आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे कि x टेंड्स टू 3 है, मतलब क्या करो कि 3x का वैल्यू, शॉर्टकट बता रहा हूं, x का वैल्यू यहां पर 3 पुट कर दो, और अगर इसका वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आता है तो वही मेरा आंसर होगा। सर वन मोर एग्जांपल सर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। से दे विल गिव यू लिमिट एट x टेंड्स टू -2 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर -7।
इसका वैल्यू लिमिट निकालने बोल रहा है, दिस इज द फंक्शन। तो आप देख सकते हो x इज इक्वल्स टू -2, अगर इसमें आप पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो सिंपली पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन दिस फंक्शन। सर आपने -2 प्लस और -2 माइनस नहीं निकाल रहे हो सर, बिकॉज मैं समझता हूं कि दिस फंक्शन लिमिट विल एग्जिस्ट। सर आप कैसे समझते हो सर ये बात? आप निकाल के देख लेना, इसका ग्राफ बनाओगे और -2 प्लस की तरफ से आओगे और -2 माइनस की तरफ से आओगे, दोनों वैल्यू बराबर आएगा। और अगर ग्राफ से नहीं बनाना है तो आप इसको रिप्लेस करके भी कर सकते हो, मैं आपको अभी समझाऊंगा। एज ऑफ नाउ शॉर्टकट वैल्यू पुट करो, टेल मी द रिजल्ट। सो x इक्वल्स टू -2 पुट करो, -2 होगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 7 इज 162। दिस इज द आंसर। प्रैक्टिस करेंगे। Can we practice one question now? Let's take one. Okay. Equation बनाओ, limit at x tends to 0 ax plus b by cx plus d value. आंसर बताओ। Right. So you can see that अगर मैं 0 यहां पर x की जगह पुट कर दूं तो ये फंक्शन फिर भी डिफाइंड है, देन माय आंसर इज सिंपली b by d। ठीक है, तो अभी तक आपने एक थ्योरम पढ़ा, क्या थ्योरम पढ़ा जी? ये वाला fx इंटू जी एक्स रहेगा। उसी तरीके से अगर fx प्लस जी एक्स रहता है, अगर फंक्शन प्लस में रहता है, तो थ्योरम 2 में आप लिख सकते हो कि लिमिट एट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस जी एक्स अगर रहेगा, दो अलग अलग फंक्शन है तो लिमिट बट जाता है। लिमिट, इसका भी लिमिट अलग निकालोगे fx का प्लस माइनस, अगर प्लस रहा तो प्लस माइनस, और x टेंड्स टू a gx का अलग निकालोगे। उसी तरीके से अगर डिवाइड रहता है, अगर लिमिट fx बाई gx रहेगा, अगर डिवाइड का भी रहेगा तो लिमिट ऊपर और नीचे बट जाता है। सो राइट लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला में भी लिमिट बट जाएगा, सो नीचे वाला अलग निकालोगे। मतलब क्या कि ये क्वेश्चन में आपने b बाई डी डायरेक्ट लिख दिया, और एक्चुअली आपको करना चाहिए था ऐसे, अगर टोटल पूरा मार्क्स चाहिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में ax प्लस b डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 cx प्लस d। समझ रहे हो, ये जो लिमिट वाला पोर्शन है ये ऊपर और नीचे बट जाता है। यहाँ पर 0 पुट करोगे ऊपर आएगा b, और यहाँ पे 0 पुट करोगे नीचे आएगा d, देयरफॉर आंसर इज b बाई d। कशिफा, इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। सो दिस इज द थर्ड वन। सो राइट डाउन द फोर्थ वन, कि कभी कभी क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी वैल्यू, कोई एक कांस्टेंट रहेगा, मान लो अल्फा टाइम्स ऑफ fx, तो अल्फा बाहर निकल जाता है, और अल्फा बाहर निकल जाएगा और लिमिट लग जाएगा आपका सिर्फ fx पर। सर नहीं समझ में आया सर, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो रहता है लिमिट fx का, लिमिट लेट मी टेक एन fx मैं ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 3 4x, तो क्या होगा, ये 4 बाहर निकल जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 3 x पर लगेगा। तो x पर लगेगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ 3 पुट कर दोगे, 4 3 is 12। सो सिंपल, राइट सिंपल इफ यू हैव अंडरस्टूड। Rahul, is that okay for you? For Kashifa and all, I think they are able to understand because this topic is done in their school, so they are able to follow quickly. So hope you are also able to follow as quick as they are able to do that. Okay, write down very important, another important thing people, सबसे पहले ये नोट में लिखो। नोट में क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर x का वैल्यू बहुत छोटा होता है तो ये n x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस nx। People, you do not ask me how and why,
but when you will learn binomial expansion then you will understand it better. Actually इसका expansion होता है 1 plus nx plus you know n into n minus 1 करके पूरा फैक्टोरियल उक्टेल करके एक्सपेंशन होता है. तो मगर आपको शॉर्ट में ये चीज याद रखना है. सर नहीं समझ में आया सर. जैसे कि 1 plus h to the power of 5 लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर h बहुत छोटा है तो 5 और h मल्टीप्लाई हो जाता है एंड देन I mean this is the final result. Limit, this is 5h actually, right? Noted. It's simply 5h when h tends to 0. Okay, चलो अगर मैं आपको अब ए क्वेश्चन दूं, लिखो टाइप 2, लिखो टाइप 2. मान लो मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2. राहुल अब देखो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, इस फंक्शन का अगर आपने x का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो देखो नीचे हो जाएगा 0, और नीचे अगर 0 आता है तो आपको प्रॉब्लम है बिकॉज दिस 0 इज नॉट अलाउड. सो व्हाट आर द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स? अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए तो इनडिटरमिनेट होगा. अगर समथिंग मान लो सम कांस्टेंट बाय 0 आ जाए तो इनडिटरमिनेट होगा. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो इनडिटरमिनेट होगा. इन्फिनिटी इनटू 0 आ जाए तो इनडिटरमिनेट होगा. समझ में आ रहा है? सम वैल्यू इज इन्फिनिटी देन मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है. तो इसको आप लिख लो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या कहलाता है. इसका वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे. सो हियर एक्चुअली इसका लिमिट निकालने के लिए वी अंडरस्टैंड दैट डायरेक्टली पुटिंग x equals to 2 will not help. So what I'll do, I'll factorize this. तो फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा x plus 2 and multiplied by x minus 2, और नीचे वाला टर्म है x minus 2 और लिमिट x tends to 2 कॉपी कर दो. ये x minus 2 कट जाएगा. और अब देखो ये फंक्शन बच गया क्या? लिमिट x tends to 2 and this is simply x plus 2. अब ये बोलेगा अरे वाह मेरे नीचे तो कुछ नहीं है, बस x टेंड्स टू 2, तो 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो. सो 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4. राइट? ओके, इफ यू अंडरस्टूड. एक प्रैक्टिस करो. लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 3. आंसर क्या होगा? Limit x tends to 3. So a cube minus b cube is a minus b, a square plus b square plus 3x divided by x minus 3. सर आप ये क्यों एक्सपैंड कर रहे हो सर? क्योंकि x is equals to 3 पे नीचे इंडिटरमिनेट आ जा रहा है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा. अब देखो x minus 3 कट जाएगा. अब जाकर के x equal to 3 अगर आप पुट करोगे, ये देखो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर plus 3 square. That means 3 times of 3 square. That is 3 to the power of up. Is that clear? So 27 is the answer, right? So but the problem is, कशिफा नोट करना, अगर मैं आपको बोलूं x tends to 10 and x power of 10 minus you know x power of 10 not necessary, I can write x power of 7 minus 10 power of 7 by x minus 10. तब आप यहां पर अगेन यही प्रॉब्लम होगी, बट यू डोंट नो द एक्सपेंशन ऑफ दिस. तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, इसके लिए हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे एंड थ्योरम इज लाइक दिस एंड राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द थ्योरम? अंडरस्टैंड द रिजल्ट. अगर x पावर ऑफ n हो माइनस a पावर ऑफ n हो और यही x और यही a नीचे में डिफरेंस में हो और लिमिट x टेंड्स टू दिस a हो, तो इसका रिजल्ट होता है n a पावर ऑफ n माइनस 1.
ये आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस। सर इसका थोड़ा सा आप प्रूफ बता सकते हो क्या सर, इफ यू डोंट माइंड? यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा सा समझा सकता हूं। ध्यान से देखो जी, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दिस थिंग, यू रिमेंबर 1 प्लस एक्स पावर ऑफ n लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या था? nx, राइट? अग्री? ये अभी मैंने आप लोग को याद करवाया, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लेंगे। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x माइनस ए है, एक्चुअली x टेंड्स टू a, कोई वैल्यू मान लो a होगा, x टेंड्स टू a, तो ऐसा हो सकता है ना कि x का जो वैल्यू है a से थोड़ा ज्यादा हो, समझ रहे हो? या तो ऐसा भी हो सकता है x का वैल्यू a से थोड़ा कम हो, क्योंकि देखो x है इधर से आएगा या तो x इधर से आएगा। अगर x इधर से आएगा तो ये वाला वैल्यू होगा, तो ये वाला जो वैल्यू होगा x, ये क्या होगा? a से थोड़ा सा कम। और अगर ये वाला वैल्यू हो जाएगा तो आप बोलोगे ना कि x जो है, ये वाला अगर x है a से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा का मतलब क्या? a प्लस h। सो लिमिट का मतलब ही यही होता है। सो व्हेन x टेंड्स टू a, तो x का वैल्यू a प्लस h। सो लिख लो, ये हमेशा आप यूज कर सकते हो कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a, तो x का वैल्यू a प्लस h या तो a माइनस h। हम लोग कन्वीनियंस के लिए हमेशा a प्लस h यूज करेंगे। सर इससे क्या फायदा हुआ सर आपको? यार इसके बाद मैं लिख सकता हूं a प्लस h, x की जगह लिख दूंगा। इसका मतलब क्या कि when h tends to 0, जब h बहुत छोटा हो जाएगा 0 की तरफ, तो इसका मतलब क्या? x will tend to a, यानी x tends to a। उल्टा अगर कहेंगे, महिमा देखना, x tends to a whenever h tends to 0। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जी कि लिमिट x tends to a, अब हम लिख सकते हैं h tends to 0, मतलब when x tends to a I can say h tends to 0, and x के जगह हम लिख देंगे a plus h। ध्यान से समझो जी, ये प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ आपको नहीं आने वाला, मगर ये अगर मैं आपको समझा दिया तो आप आगे के क्वेश्चंस में मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करोगे आई गेस। ऑल्सो कशिफा, यू अग्री x माइनस a is equals to h? Because I want to represent everything in terms of h now. So x minus a, I can write h. Now h tends to 0. So if I put h tends to 0, then a power of n minus a power of n 0, and नीचे भी अगर हम 0 कर दें तो 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट राहुल? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली a पावर ऑफ n कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 प्लस h बाई a पावर ऑफ n माइनस a पावर ऑफ n, और उसको भी कॉमन निकालेंगे तो माइनस 1 बचेगा, और नीचे हो जाएगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से सुनना, टफ नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल बिकम अ तोता। आप रट लोगे सारा एंड एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा, बट दैट्स ऑफ नो यूज। ध्यान से समझो। अब देखो, सिंस h टेंड्स टू 0, यानी ये वाला जो वैल्यू है काफी छोटा है, राइट? अग्री? दैट मीन्स इफ आई कंपेयर विद दिस, इफ x टेंड्स टू 0, अगर ये बहुत छोटा है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा nx। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 प्लस, आई मीन यू नो 1 नहीं, बाहर में a पावर ऑफ n है, किधर जाऊं, नेक्स्ट पेज नहीं, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो a पावर ऑफ n होगा 1 प्लस n टाइम्स ऑफ h डिवाइडेड बाय a माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय h। सर अब मैं समझ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, एंड ये h कट जाएगा। अच्छा सर आपने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप h को कैंसिल करना चाह रहे थे, क्योंकि आप h का वैल्यू 0 यहाँ नहीं पुट कर पा रहे थे। सो दिस वे यू हैव कैंसिल्ड आउट h, so this becomes n into a power of n. That's what I have, oh sorry, एक और था ना जी,
एन एच ए पावर ऑफ एन, राइट? एक मिनट, ए पावर ऑफ एन, अच्छा ए पावर ऑफ एन निकल गया, ए पावर ऑफ एन हो गया 1 प्लस एन एच. So this result is what? N into a power of n minus 1. There is, अच्छा one more a तो है ना नीचे, ये वाला देखो, ये वाला तो a है ना, ये a power of 1 है तो a power of एक कम जाएगा ना, इसी कारण सेम है. Right, understood. Proof is not required, but still you can understand little bit. लिखो जी. Any doubt? Kritika, is that okay? ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? x पावर ऑफ 7 10 पावर ऑफ 7, तो n इंटू 7 इंटू n इंटू a पावर ऑफ n माइनस 1, 7 इंटू 10 पावर ऑफ 7 माइनस 1, so 7 इंटू 10 पावर ऑफ 6. अंडरस्टूड? क्लियर? चल, let's take one more question to practice this. Say they give you limit x tends to 1, x power of 15 minus 1 by x minus 1. आंसर बताओ जल्दी. Okay, so I think you guys understand. 1 power of 15 लिख ही सकते हैं. So 15 into 1 power of, I mean, but here नीचे is x minus 1. That's answer is just 1, right? In this case. So 15 into 1 power of 15 minus 1 14, मतलब 15 हो जाएगा. Answer will be just 15. ठीक है? Next, here you see 8x cube है and नीचे 16x power of 4 minus 1 है and x tends to half. तो x tends to जब half होगा, देखो इधर ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1, तो 1 minus 1 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इस कारण हमें थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेना पड़ेगा. रीअरेंज करने का मतलब क्या? मैं कोशिश करूंगा x पावर ऑफ n माइनस a पावर ऑफ n बाय x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a के फॉर्म को यूज कर पाए, क्योंकि x टेंड्स टू हाफ है. तो क्या करेंगे जी, यहां से 8 कॉमन निकाल सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1 बाई 8, नीचे 16 कॉमन निकाल लो, तो x पावर ऑफ 4 माइनस 1 बाई 16. इसमें देखो 1 बाई 8 क्या है? 2 क्यूब है, राइट? दैट मीन्स इट इज नथिंग बट हाफ का क्यूब. 1 बाई 16 क्या है? 2 टू द पावर ऑफ 4, आई मीन हाफ टू द पावर ऑफ 4. इसका मतलब कि अगर ये तो हाफ हो गया ना जी, और लिमिट x टेंड्स टू हाफ कॉपी कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये 8 बाई 16 तो हाफ हो गया, x क्यूब माइनस हाफ का क्यूब, इसको कमी है x माइनस हाफ दे दिया. इन द लाइक मैनर नीचे वाले में भी, नीचे वाला पोर्शन में नीचे लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, दिस बाय दिस है, ठीक है? हाफ हाफ बढ़ जाएगा ना, लिमिट बढ़ जाता है. सो x पावर ऑफ 4 माइनस हाफ पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ. तो ऊपर का रिजल्ट क्या होगा? हाफ, ये तो हाफ कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय a, यहां पर a क्या है? 3 इंटू हाफ पावर ऑफ 2
डिवाइडेड बाय, एक तो हाफ कॉपी हो ही चुका, अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू हाफ पावर ऑफ 3, सॉल्व करो कितना आ जाएगा हाफ इंटू 3/4, नीचे हाफ बच जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, द रिजल्ट विल बी 3/4. गॉट इट? I know I could write very clearly because of lack of space, so hope you have understood. Rahul, especially for you, is that okay? और जब अलग अलग तो नीचे x माइनस हाफ कैसे आ गया? x माइनस हाफ इंसर्ट किए, मतलब दोनों जगह तो x माइनस हाफ कर ही सकते हैं ना, कट जाएगा ना ये। हाँ उसको कंपनसेट या ऐसे लिखे हैं, देखो x बाई वाई है तो हम लिख सकते हैं ना x/2 डिवाइडेड बाई y/2, 2 तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने x माइनस हाफ को इंसर्ट किया हुआ है ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए, दिस बाय दिस। क्लियर? आगे बढ़े, फास्ट हो रहा है, ओके हो रहा है, लिखो फास्ट स्लो मीडियम कैसा चल रहा है, बिकॉज यू नो आई पर्सनली फील आई एम गोइंग फास्ट आई जस्ट वांट व्हाट यू गाइस थिंक, मीडियम, लिटिल फास्ट, यस यस लिटिल फास्ट यार, I will reduce my speed. Write down a question. Limit x tends to 2, x power of n minus 2 power of n divided by x minus 2 is equals to 80. n belongs to natural number. तो n का वैल्यू क्या होगा? चल people, I am not able to give enough time to you guys to solve. आप ध्यान से सुनो, घर पे आप प्रैक्टिस करना। आई थिंक इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n इंटू लेफ्ट हैंड साइड का a पावर, a मतलब क्या 2 पावर ऑफ n माइनस 1, दैट्स इक्वल टू 80. राइट, सो यू कैन ट्राई हिट एंड ट्रायल. सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके हिट एंड ट्रायल करो. तो 1 करोगे तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 इंटू 2 पावर ऑफ 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 में क्या हो रहा है 5 इंटू 2 पावर ऑफ 4, 16 5 से 80, यस n इक्वल टू 5 सेटिस्फाई किया. तो इसको आप लिखो बाय हिट एंड ट्रायल, दिस इज द वैल्यू यू हैव गॉट. Right, okay, if you have understood. N is equals to 5 by hit and trial. Chal, next question. People, hope you have copied it. Fx is equals to, ये important है जी, लिखो इसको, x square minus 1 when x is less than equal to 1 minus x square minus 1 when x is greater than 1. Does limit at x tends to 1 of fx exist? क्या इस पर लिमिट एग्जिस्ट करता है? राहुल आपको याद है लिमिट एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या हमने बताया था? लेफ्ट की तरफ से वैल्यू कंटीन्यूअस, हाँ लेफ्ट की तरफ से वैल्यू निकालोगे 0 प्लस, मतलब a प्लस और a माइनस, कहाँ गया नोट्स, कहाँ गया नोट्स, यस a प्लस और a माइनस की तरफ दोनों तरफ से वैल्यू निकालोगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो दोनों बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट? राइट कशिफा? सो हियर अगर आप देखो x लेस देन इक्वल टू 1, तो अगर आप निकालोगे कि लिमिट, अच्छा इसका मैंने लिमिट लिखना भूल गया मैं, लिमिट x, अच्छा fx तो दिया हुआ है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस, तो fx का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस का मतलब क्या, राइट हैंड साइड मतलब x का वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब फंक्शन हो जाएगा लिमिट, फंक्शन चूज करोगे ये वाला फंक्शन कि ये वाला फंक्शन, डेफिनेटली ये वाला फंक्शन. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 1 प्लस है तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर -1, आई थिंक -2 आएगा। एंड कलर चेंज कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस मतलब क्या, 1 से कम, 1 से कम इसका वैल्यू तो ये है, यानी फंक्शन चेंज हो गया। अब 1 माइनस अगर करोगे तो फंक्शन ये वाला नहीं आएगा, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। तो चूंकि फंक्शन चेंज हो गया, अब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। सर -1 पुट करेंगे कि 1 पुट करेंगे सर, एनीबडी? x का वैल्यू -1 पुट करेंगे कि 1 पुट करेंगे? ऑलवेज 1 पुट करेंगे, बिकॉज एनीवे यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे 1 पुट करो और वैल्यू निकाल लो। सो माइनस, यहाँ -1 पुट मत करना, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 1 का स्क्वायर -1 दैट इज 0। तो सिंस फर्स्ट is not equal to second, since 1 is not equal to 2, therefore limit at x tends to 1 of fx does not exist. Right sir, understood. Right, understood. I don't think I'll be able to finish this topic in one class exactly. No issues. Is that okay, this much? ठीक है, चल एक क्वेश्चन लिखो, limit x tends to 0, you guys solve it, okay? Find limit x tends to 0 fx, find the value of this, and limit x tends to 1 fx, दोनों का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, such that fx is given as 2x plus 3, कब, जब x 0 से कम है, और इसका वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x plus 1, कब, जब x का वैल्यू 0 से ज्यादा है। गिविंग यू 1 minute, सॉल्व इट सून। ओके, हैव यू गाइस सॉल्व्ड इट? सर आप तो बहुत फास्ट बता रहे हो सर, पता नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। Though you guys are not given enough time to solve, but hope you guys are able to understand. जैसे कि 3 and 6. हाँ, पहला वाला क्या आ रहा है? वेरी गुड, आई थिंक प्रीटी इजी। x टेंड्स टू 0, तो 0 को टेंड मतलब कि लेफ्ट के तरफ से या तो राइट के तरफ से, ठीक है? तो अगर 0 लेफ्ट की तरफ से आएगा तो ये आएगा 3, और अगर राइट की तरफ से आएगा तो भी तो 3 आएगा। सो इसका वैल्यू 3। कशिफा, इज दिस क्लियर? राइट, क्लियर। एंड अगर x टेंड्स टू 1, तो 1 के लेफ्ट की तरफ से आएगा तब भी तो
0 से बड़ा होगा, एंड 1 के राइट की तरफ से आएगा तब भी तो 0 से बड़ा ही होगा. So always it will be this function. तो यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करोगे. So 1 plus 1 2, 2 into 3 is 6. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6. Got it? Very good. Kritika, this question is from that image which you had sent. I think this was taken up by your school teacher. You didn't write the question completely. Please understand. कभी कभी ऐसे करके एक क्वेश्चन इन्होंने दिया था स्कूल में आप लोग के कि ये फंक्शन है, लिमिट एग्जिस्ट करता है कहाँ, x इज इक्वल टू 2 पर. सो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx एग्जिस्ट. तो बताओ भाई k का वैल्यू क्या होगा. तो 2 पर अगर एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट की तरफ से भी एग्जिस्ट करता होगा और इसका वैल्यू राइट की तरफ से भी बराबर आएगा. करेक्ट कशिफा? सो दोनों बराबर आएगा. दिस इज fx. सो लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट मतलब x लेस देन 2, तो यहां पर सो 4 टाइम्स ऑफ, हियर यू विल रिप्लेस x इज इक्वल टू 2 माइनस 5. ये सॉरी ये प्लस कर देते हैं, ठीक है. ये लेफ्ट की तरफ से और ये राइट की तरफ से, राइट की तरफ से फंक्शन तो ये हो जाएगा. सो दिस फंक्शन विल बिकम 2 माइनस k. I think if you solve this you'll get 2 minus कितना आ रहा है देखो सॉल्व करके 8 ठीक है. So 2 minus 3 is minus 1. So k is equals to minus 1. Yes, Kritika, Mahima and all, in your school your teacher has taught this, right? ठीक है. तो here basically you have learned very important things. मैंने कवर कर दिया है जो आपको स्कूल्स में कवर किया गया. एंड फंडामेंटल्स जो है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा मैं नहीं ले पा रहा बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है. वी विल गो to the next portion, exercise 13.1. You can try at home the remaining stuffs. Rahul in RS Agarwal also a lot of things I have covered. If this much is okay, write clear. Everybody. ठीक है. चल अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्केल पर. लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थोड़ा पढ़ना है. It will be easy for people who have studied trigonometry with me. For others a little bit difficult, but not that difficult. Okay, so in trigonometric limits let us understand some important theorems and remember the results. ठीक है. सबसे पहले लिमिट when x tends to 0 sin x का वैल्यू क्या होता है. सर मुझे नहीं याद रहता है सर इतना कुछ, आप जरा ग्राफ से बता दो. तो देखो जी, अगर x 0 को टेंड करता है तो साइन का भी तो वैल्यू 0 ही आएगा. इधर से 0 पे आओ, इधर से 0 पे आओ, साइन x का ग्राफ है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. नेक्स्ट. सर आप 0 पे क्यों ले रहे हो सर. यार ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग 0 पे डिफाइन करते हैं तो हम लोग को ये याद रखना रहता है. लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 cos x है तो आप यहां पर क्या किया, x इक्वल्स टू 0 यहां पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू यहां भी 0 पुट कर दो. वाई? क्योंकि cos थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, अगर x 0 को टेंड करेगा इधर से या तो इधर से, इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा. इसका वैल्यू होता है 1. थर्ड लिख लो, लिमिट एट x टेंड्स टू 0 tan x. Anybody can tell? Tan x is actually sin x by cos x. Tan x is sin x by cos x. तो ऊपर लगेगा तो 0 ही हो जाएगा. Proof not required. Right, copied and understood. फटाफट 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है. sin x, cos x, tan x. अगर x 0 को टेंड करेगा तो इन वैल्यूज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को क्या होता है. ठीक है. चलो राइट ऑन द फोर्थ वन. People limit when x tends to
0, sin x बाय x क्या होगा? एक्चुअली आप लोग अभी नहीं पढ़े हो मगर बाद में पढ़ोगे कि साइन थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है कब? व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको लिख लो रफ में, साइन थीटा का वैल्यू नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब कि अगर मैं थीटा को नीचे ले आऊं तो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जब थीटा जब नीचे आएगा तो इधर तो 1 छोड़ देगा। इसी कारण ऐसे याद रखते हैं, साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 द रिजल्ट इज 1। लिमिट tan x के केस में tan x by x when x tends to 0 then the value is again 1. Why? Because this is 1 point. And similarly जब थीटा बहुत छोटा होता है ना तो tan थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है। सर ये वाला थोड़ा सा समझा दोगे सर? यार देखो, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे समझाया था कि ये एक सर्कुलर लाइन होता है जो मूव करता है, ये थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? P by H। यस, P मतलब क्या? परपेंडिकुलर, ये वाला। H मतलब क्या? ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं तो P by H। कशिफा आप जरा नोट करो ये चीज कि अगर ये P छोटा होता जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि ये थीटा बहुत छोटा होता जाएगा तो धीरे धीरे ये लाइन यहाँ आएगा, और थीटा छोटा होगा तो ये लाइन यहाँ आएगा, और थीटा छोटा आएगा ये लाइन यहाँ आएगा। मतलब एज थीटा विल टेंड टूवर्ड्स 0, थीटा अगर 0 की तरफ जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा बन जाएगा, क्योंकि P तो खत्म हो जाएगा ना जी, P will vanish. Therefore we say that sin theta actually becomes equal to theta when theta tends towards 0. In the like manner tan theta also becomes almost equal to theta when theta tends to 0. उससे ये रिजल्ट आता है। एक और लिख लो कि अगर 1 माइनस cos x by x है where x tends to 0, अगर आप यहां पुट करोगे तो 1 माइनस cos 0 क्या होता है? 1, 1 minus 1 0, 0 by 0 indeterminate फॉर्म आ जाएगा। Therefore when we do the expansion of cos x, सर एक्सपेंशन क्या बोलते हो सर? यार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना इसका एक एक्सपेंशन होता है, जो कि अभी हम लोग जब सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। उसी तरीके से cos x का भी एक्सपेंशन होता है, जब एक्सपेंशन करने के बाद अगर आप करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। तो ये आपको याद रखना है, रिमेंबर, लिख लो, राइट, नोटेड। प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड इन योर बुक्स, proof and all will be given, proof is not required. Let us do a couple of questions, you will understand how simple this topic is. सर एक आध क्वेश्चन बताओ तो सर। जैसे कि देखो यार कि मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx, ठीक है? तो अगर मैं x 0 पुट कर दूंगा यहाँ पर तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा। मगर मुझे याद है क्या, लिमिट अगर x 0 को टेंड करता है sin x by x, ये सेम, ये और ये सेम, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर मैं ऐसा करता हूं sin ax by ax कर देता हूं डिवाइडेड बाय sin bx by bx कर देता हूं। तो ax को कंपनसेट करने के लिए ax यहां डालोगे और bx को कंपनसेट करने के लिए bx यहां डालोगे, और लिमिट दोनों में बट जाएगा। क्यों राहुल? एक लिमिट अगर डिवाइड में रहता है तो इसको भी लिमिट मिलेगा, ऊपर वाले को भी लिमिट मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय ax और x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय लिमिट, अब नीचे वाले को भी लिमिट मिलेगा। अग्री? और ये देखो x x कट जाएगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू sin x by x लिमिट x टेंड्स टू 0 का वैल्यू होता है 1, सो 1 into a, एंड यू नो
साइन बी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू अगेन 1, तो 1 इंटू बी, सो आंसर इज ए बाई बी. राइट, अंडरस्टूड. राइट, रिपीट. No matter how fast I run, I cannot do this topic in just 1 hour. I think I'll take one more class on this. I can't help. But your school teachers are really Rajnikant. They're finishing the topics like anything. Okay. So let's do one more question. Cosec x minus cot x, limit x tends to 0. ठीक है. सो अगर इस टाइप से है तो अगेन x टेंड्स टू 0, दोनों में बढ़ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई साइन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई साइन x. और आप बेटर ऐसा रखो, एक लिमिट ही रखो, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला याद आ गया जी. 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स. देखो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 का वैल्यू 0 होता है. तो मैं क्या करूंगा, इसको भी x की कमी है, इसको भी x की कमी है, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय साइन x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0. समझ में आ रहा है? दोनों तरफ, दोनों को मैंने डिवाइडेड बाय x दे दिया. राहुल, ये वाला पार्ट समझ में? तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा. ऊपर में वैल्यू आएगा 0 और नीचे में वैल्यू आएगा 1. सो 0 बाई 1 क्या होता है? 0. 0 इज द डिटरमिनेट फॉर्म. 0 बाई 1 इज द डिटरमिनेट फॉर्म. इनडिटरमिनेट नहीं है, तो आंसर इज 0. क्लियर? सर एक और एग्जांपल कॉपी कर लो, लिखो कॉपीड. ठीक है. many a times they will give you not 0 but some value other than 0. say limit x tends to pi, 1 plus cos x divided by tan square x. ठीक है. सो अगर आप पाई पुट करोगे तो पाई इज cos पाई माइनस 1, 1 माइनस 1 0, tan पाई 0, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा. तो मैं फिर भी क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि ये कट जाए, मतलब थोड़ा फैक्टराइज हो जाए. tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स. तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू पाई. सर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कैसे लिख रहे हो आप? 1 प्लस कॉस एक्स रहने दो, इसको लिख दो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू पाई. तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जा रहा हूँ, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स. ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा. कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है जी? कॉस पाई माइनस 1 होता है. तो यहाँ पे कॉस एक्स का वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? माइनस 1 का स्क्वायर and divided by 1 minus of minus 1. So 1 divided by 1 plus 1, that is 1 by 2 is the answer. Right? Okay, if you have understood. Clear? चल एक और क्वेश्चन लेते हैं. आपके स्कूल में टीचर ने इस क्वेश्चन को बनाया है, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ. मान लो x टेंड्स टू पाई है एंड सिंपली x पाई माइनस एक्स है डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स. आई थिंक
you cannot do this stupidity that you will cancel out this and this, right? That's not true, because वो sin of some angle है और ये pi minus x अलग है. तो यहाँ पे x equal to pi put करने पे again 0/0 फॉर्म आ जाएगा. x is equals to pi, so sin 0 0. X is equals to pi minus pi 0, 0/0 indeterminate. So whenever you come across indeterminate forms, you need to do a little bit of छेड़खानी to the question. Sir, what is that? यार, if x tends to pi, I told you, I'm writing here in the solution. If x tends to pi, that means x जो होगा pi plus some h होगा. So let us convert this one in terms of h. That means here, if x अगर pi को tend करेगा, definitely h 0 को tend करेगा. अगर x भी pi हो जाएगा, pi कट जाएगा ना, h 0 हो जाएगा. Therefore, limit h tends to 0. जब x pi को tend करेगा, then h. So सर आप क्या कर रहे हो सर? मैं यहाँ x को pi के टर्म्स में लिख दे रहा हूँ. सर इससे क्या फायदा? यार वो इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ऊपर में हो जाएगा देखो sin h, because x minus, sorry, just a moment, pi minus x minus h हो जाएगा ना. तो ऊपर में हो जाएगा minus h divided by pi. And what is pi minus x? Again minus h. Sin minus theta क्या होता है जी? Minus sin theta, तो माइनस बाहर निकल जाएगा. Limit h tends to 0. और ये भी माइनस बाहर निकलेगा, तो कट जाएगा ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? So I get sin h divided by h. And what is the formula for this? Sin x by x, limit x tends to 0 is 1. So 1 into 1. But 1 pi is left. 1 by pi. ये नीचे pi छूटा हुआ, इसको कॉपी कर लो. तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा pi. This is the answer. Right, understood? ठीक है. Copied. एक क्वेश्चन बना रहे. We'll take it 2 more minutes. Suppose they will ask you tan 3x by 5x, limit x tends to 0. So you see here, आपको एक, the moment you see question like this, you should recall a formula. Tan x by x, limit x tends to 0. क्या होता है? 0, right? Or 1. It is same as sin x. Tan x will tend to x. X by x will be 1. मैंने बताया था ना. चलो, तो यहाँ पर ये 3x की कमी है. So I will rewrite this question as x tends to 0. So tan 3x by 3x. तो बाई कर दिया तो उसको तो कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा. और नीचे में है 5x. ये वाला पोर्शन, यहां से अगर आप इतना सारा पोर्शन, ये पोर्शन देखो, दिस पार्ट इज, अच्छा x tends to 0, इसका मतलब 3x also